Bismillah Rahman Rahim. Welcome to Grassroots Cricket. Welcome to Cricket Mahfil. And today we're going to be talking about the recently concluded, abhi kuch lamhe hi hue hain, conclude hue T20 international series between Pakistan and Zimbabwe. As always, we are very happy to be joined by Aram Hamid, who is our resident analyst, expert. We're going to talk all things cricket. 2-1 series win for Pakistan, Aram. Should we be happy or should we be worried? I think we should be worried because 2-1 से भी जीते हैं तो काफ़ी मुश्किलों से जीते हैं. दो जो convincing wins थी वो भी like they weren't entirely convincing predominant wins. उसमें like first वाले में 11 रन से जीते हैं से और third वाले में भी मतलब third वाले में somewhat बेहतर था, but I think there are some issues that need to be addressed as soon as possible. तो अब लोग कहेंगे जी सीरीज नहीं हारे, लोग कहेंगे अवे फ्रॉम होम सीरीज जीत गए. आप और मैं ये पहले भी डिस्कस कर रहे थे. विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू जिम्बाब्वे, इट्स वन ऑफ द वर्स्ट रैंक टीम्स इन द वर्ल्ड, वन ऑफ द लोएस्ट रैंक टीम्स इन द वर्ल्ड. पाकिस्तान इज नॉट. पाकिस्तान स्पेशली इन T20 क्रिकेट. अब लोग कह रहे हैं कि जी द कंडीशंस आर डिफिकल्ट. कंडीशंस तो जिम्बाब्वे के लिए भी डिफिकल्ट होती हैं जब वो पाकिस्तान आती हैं. Point is, when we selected the squad, did we not do our homework about the conditions? Did we think to ourselves that these low, slow wickets are going to require a different kind of batsman? Because I think we just kind of went with a horses for courses approach without really thinking too much about the bigger picture. I think we were taken aback by the wickets at the Harare Sports Cup. And especially given the fact that we were playing in South Africa, तो उधर obviously बात है, pace ज़्यादा होता है, bounce ज़्यादा होता है, ball bat पे ज़्यादा अच्छी तरीके से आता है, especially for the likes of Fakhar Zaman या Sharjeel Khan. Their batting style tends to complement the bouncy wickets. तो इसमें एक तो बहुत issue आ रहा था कि ball bat पे सही नहीं आ रहा था. Plus I would say कि Zimbabwe का थोड़ा home advantage है because इस non-pacey wicket पे obviously they are more experienced. तो मतलब even though they are the lowest ranked team, उन्होंने बेहतर adjust कर लिया. With that being said, we should have hit more sixes throughout the series. We are definitely lacking firepower throughout our batting. मतलब रिजवान है, उसने अपने आप को adapt किया हुआ है, वो strike rotation और running between the wickets से चल रहा है. Babar is struggling, but I have faith in him कि मतलब he will obviously work hard and he will improve in his drawbacks. बात यही है कि फिर मिडल ऑर्डर में और लोअर मिडल ऑर्डर में हमारी फायर पावर लैक कर रही है. बट उसमें भी आई थिंक हमें पिच की अडेप्टेबिलिटी इज द मेन इशू दैट वी कुडंट अडेप्ट टू द पिच रियली वेल. ये कोई और पिच होती तो आई एम श्योर दैट वी वुड हैव डन रियली वेल. But Aram, two important points you raise. I think both need to be spoken about. As an international team, a very good one, a very strong one, do we not have the analysis to know the kind of wickets जो हमें वहाँ पे face होंगी? ये तो नहीं हो सकता कि हरारे में जिस तरह की विकेट्स हैं वो हमें एज अ सरप्राइज आना चाहिए. हमारी टीम में एनालिस्ट्स हैं, हमारे पास एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, तो क्या हमें नहीं पता था ये विकेट्स होंगी वहाँ पे? होना चाहिए था, पता होना चाहिए था. और मतलब बड़ी सीधी सी बात है कि जिम्बाब्वे hasn't won T20 सीरीज अगेंस्ट एनी इंटरनेशनल टीम. और पाकिस्तान को तो ऑब्वियसली नहीं हराया हुआ, किसी T20 में नहीं हराया हुआ था इस सेकंड वाले T20 मैच से पहले. तो आई थिंक बहुत शर्मिंदगी की बात है कि हम लोग उस तरह डोमिनेट नहीं कर सके जिस तरह हमें करना चाहिए था. और लोग कह रहे हैं कि रेस्ट किया हुआ था प्लेयर्स को. आई थिंक उसको भी हमारी बैटिंग बिल्कुल फुल स्ट्रेंथ थी. सिर्फ हसन और शाहीन रेस्टेड थे और हसन आया है थर्ड मैच में, तो उससे थोड़ा हम लोग बचे हैं. तो आई थिंक काफ़ी चीज़ें स्पेशली मिडल ऑर्डर, आई थिंक मेन चीज़ तो यही है ना कि आपका टॉप ऑर्डर क्लिक कर रहा है और टॉप ऑर्डर में इतनी फायर पावर नहीं है. लेकिन टॉप ऑर्डर है भी इतना अच्छा कि टॉप ऑर्डर जो है 18th और 19th ओवर तक बैटिंग कर लेता है. और फिर जो आपकी फायर पावर है, फहीम है, हसन है, उनको उस तरह मौका भी नहीं मिलता कि वो आके थोड़े मतलब स्ट्राइक रेट इम्प्रूव करें. तो आई थिंक टाइम लगेगा, थोड़ी मतलब चीज़ें इम्प्रूव होंगी. पता होना चाहिए था हमें कि बेहतर हो सकता था यहाँ पे परफॉर्मेंस, ऑब्वियसली बात है. बट आई थिंक टाइम है क्या हमारे पास? इट्स नॉट, द वर्ल्ड कप्स नॉट वेरी फार अवे. आई नो मतलब टाइम काफी कम है, बट आई थिंक फिंगर्स क्रॉस्ड, लेट्स होप फॉर द बेस्ट. और जब हम 4 ओपनर्स एक टीम में खिलाएंगे तो फिर आपको. बट आई थिंक उन्होंने आपसे इंस्पिरेशन ली. आपने कहा जी टॉप ऑर्डर बहुत अच्छा खेलता है, उन्होंने कहा जी सारे टॉप ऑर्डर नु खिला दो आज,
एक साइड the top order ਨੂੰ ਰੱਖੋ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ bowlers ਨੂੰ ਰੱਖੋ. Another very important point you raised, sixes. 2 sixes for Pakistan in the first T20, 3 for Zimbabwe. ठीक है जी? 1 6 for Pakistan in the second T20 from the bat of Haris Rauf, probably the shot of his life. जो सेकंड T20 माशाल्लाह आप 119 नहीं चेस करें. देखिए, आई नो एक हमारे फैंस में और लोगों में भी ये होता है कि जी आप टीम को unduly criticize mat kare. We've just won a T20 series and a one-day series in South Africa, and it's true, the boys are having to travel, be in biosecure bubbles, a lot of stress and all of that. But the point is that with all of those points there, with all of those factors there, Zimbabwe se T20 हारना फ्रॉम अ टीम, मैं आपको पहले बता रहा था लूक जोंगवे जो है वो 5 साल से क्रिकेट ही नहीं खेले, उन्होंने भी आके जूता उतार के कान पे रख लिया, उन्होंने कहा जी मैं भी ये कर लूं. सो द पॉइंट इज, यू सेड you're right, we don't have a middle order. Why are we selecting the same players again and again? It's, I think अब हमारी जो problem है with Asif Ali, again this is not a personal attack on Asif. I want him to do well, I want him to succeed, I want him to be the best he can, because on form Asif is very good. बट हमारी आसिफ वाली प्रॉब्लम बहुत प्रॉब्लमैटिक हो गई है. पीपल हैव फिगर्ड हिम आउट and he's continuously playing and he's not crossed 30 since in one innings other than against New Zealand. I think Asif has been given way too many chances, and I don't know why he has been given chance over chance over chance. उसका जो performance उससे PSL में होती है, for some reason he hasn't lived up to his expectations in the international arena. और आई थिंक इट्स टाइम दैट वी मूव पास्ट हिम. हमारे पास और मतलब ऐसा नहीं है कि ऑप्शन सारी खत्म हो गई हैं. वी स्टिल मतलब यू नेवर नो. फखर जिस तरह आज उन्होंने लाइक 4 डाउन पे स्लॉटेड था, मतलब यू नेवर नो कि वो चल जाए और वी मतलब 3 डाउन पे वी कैन either go with सरफराज और शोएब मलिक और व्हाटएवर. बट आई थिंक अगर 4 डाउन वाला लेट्स सी कि अगली T20 सीरीज में आई थिंक इंग्लैंड में है, तो आई थिंक let's give Fakhar a chance at number 6. और Sharjeel will definitely do well. मतलब पेसी विकेट्स हैं, आपको पता है इंग्लैंड पे बाउंस ज़्यादा अच्छा आता है, बॉल आएगा, मतलब Sharjeel and Fakhar both will probably do really well. तो टाइम लगेगा. मतलब जो अगली सीरीज है आई थिंक हमें डिसाइड कर लेना है कि कौन से हमारे 22 मैन स्क्वाड में प्लेयर्स जाएंगे. अच्छी बात यह है कि 22 मैन स्क्वाड है और 15 मैन या 16 मैन स्क्वाड दी हैं, तो उसमें हम लोग बैकअप लेके जा सकते हैं. और जिस तरह मैंने पहले बात की थी आपसे कि इंडिया में हमारी जो प्रॉबली मतलब पॉसिबिलिटी है कि न्यू दिल्ली ही में ही सारे मैचेस होंगे क्वारंटाइन और कोविड-19 की वजह से. तो आई थिंक हमें उस हिसाब से टीम कॉम्बिनेशन लेके जाना पड़ेगा कि वहाँ पे स्पिनिंग विकेट्स होती हैं और इतना तेज़ बॉल नहीं आता बैट पे, और पॉसिबिलिटी है कि थोड़ी सी शायद जिम्बाब्वे की पिच जैसी पेस आ सकती है वहाँ पे. उधर स्पिन ज़्यादा होता है बट पेस इतना तेज़ नहीं आएगा. तो उससे हमें ये सारी चीज़ें माइंड में रखनी पड़ेंगी बिफोर सेलेक्टिंग द 22 मैन स्क्वाड. बट अब देखो, we're looking at a very important point. आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेस किया शर्जील की बैटिंग का, बट टुडे शर्जील वाज awful in the field. His fitness is a concern, his fielding is a concern, because aapne, yes, you want to have him at 3 or 4, he can go out there and be explosive, but suppose he's not, suppose us din wo 2 ball duck karta hai, then you've got someone in the field who's not even contributing. So hamare paas options kya hai? Aaj main wo dekh raha hu, aaj ke match mein मोहम्मद रिजवान अकेले के 3 छक्के, जिम्बाब्वे के कोई भी 6s नहीं. So that's in the end, that's the difference maker. It's becoming more and more कि hitting big hits, big 6s are making the difference in closely fought matches. अगर हम ओवर हमारे पास कोई पावर हिटर नहीं होगा वर्ल्ड कप में, देखो the England series in the bigger picture doesn't matter what happens, because you need to use it as a preparation for the World Cup. Are we making a mistake or are we unclear? हैदर अली का क्या रोल है, अब्दुल्ला शफीक का क्या रोल है, मोहम्मद हफीज का क्या रोल है? बिकॉज आपने सही कहा कि टॉप ऑर्डर चल रहा है या लोअर ऑर्डर में आपके पास हसन और फहीम है, मिडिल ऑर्डर में कोई नहीं है. टुडे यू प्लेड सरफराज, आर यू गोइंग टू प्ले सरफराज अगेन? बिकॉज सरफराज द बैट्समैन is not what you need. He kept very well today. Exactly. But Rizwan keeps very well also. तो ये muddled सी जो thinking आ रही है, ये एक lack of clarity नजर आ रही है. जी, आई थिंक क्लैरिटी आने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज आपने एक तो मतलब हैदर अली के साथ ना
उस हैदर अली की इस तरह गलती नहीं है कि उसकी बैटिंग पोजीशन चेंज हो रही है, क्योंकि हमारा टॉप ऑर्डर माशाल्लाह काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। बट अब क्योंकि टॉप ऑर्डर परफॉर्म कर रहा है अच्छा, अब हैदर अली को हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इन्हीं टॉप ऑर्डर वाले प्लेयर्स में से किसी तरह नंबर 6 पे इनको कोई हिटर बना दें। हमने हैदर को भी यही किया, हैदर को नंबर 5 पे लेके, फ़खर को भी यही किया, नंबर 6 पे ले जाए। अब वो रिस्क है, वो हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होगा तो फिर ऑब्वियसली प्लेयर ड्रॉप हो जाएगा। तो आई थिंक सरफराज की तो बिल्कुल भी, मतलब आई एम नॉट फॉर सरफराज बीइंग प्लेड एज अ बैट्समैन। उसको आपने लेके जाना है, लेके जाएं, 100 दफ़ा लेके जाएं, बट एज अ बैकअप विकेट कीपर इन खुदा न खास्ता रिजवान को कुछ होता है तो ही कैन बी अ मेकशिफ्ट ओपनर एज वेल। बट नंबर 5 इज अ वेरी मतलब इंपॉर्टेंट पोजिशन, और खास तौर पे अभी आजकल आपने देखा होगा हफीज इज really out of touch, but हफीज का क्योंकि 2020 बहुत अच्छा गुजरा हुआ है, और since he is an experienced campaigner, तो आई थिंक उसको नंबर 4 पे ही रखना चाहिए। आपका वन डाउन पे अगर मतलब जिस तरह आज वाला जो बैटिंग ऑर्डर है उसको लेके चलें, 4 डाउन पे हम फखर को फॉर एग्जांपल ट्राई करते हैं, तो 3 डाउन पे शोएब मलिक इज समवन हु कैन इजीली स्लॉट इन। खुदा ना खास्ता अगर फखर जमान का भी ये वाला जो हम गैम्बल खेल रहे हैं नहीं होता, एंड जिसका मतलब है कि मतलब फॉर अज्यूमिंग कि शर्जील भी नहीं होता, तो वी कैन गो बैक टू द ओरिजिनल ऑर्डर जिसमें फखर और वन डाउन पे आएगा, बाबर और उस्मान कैन ओपन, और फिर हम मतलब आई वुड बी वेरी सेटिस्फाइड अगर हम 4 डाउन पे आप इमाद वसीम को ले आएं, और अगर उसके पास बैटिंग और राउंडर भी खिला लेंगे, आई थिंक ही विल डू वंडर्स। और इंडिया में उसकी शायद हमें बॉलिंग की भी जरूरत ना पड़े इतनी, बिकॉज स्पिनिंग विकेट हैं। लेकिन आई थिंक मतलब जो सिचुएशन हो रही है, बनती जा रही है, आई थिंक इमाद कैन डू रियली गुड एट नंबर 6, फॉलोड बाय शादाब, फहीम एंड हसन एटसेट्रा। तो आई थिंक दैट कुड बी अ वेरी गुड लोअर मिडल ऑर्डर। And what about guys like Iftikhar? What about guys like Azam Khan, जिन्होंने PSL में भी domestic T20 में भी performances दी हैं? Because a lot of people feel कि उनको chances नहीं दिए जाए। देखें, आसिफ की selection के पीछे जो वजूहात हैं वो तो ये हैं कि उनके domestic performances बहुत strong हैं। Domestic cricket में some of Asif's performances are incredible. He's getting hundreds of 50 balls, 40 balls. Like you said, he's not being able to make the step up, but it's a continued time now. Secondly, हमने नवाज को देखा है, नवाज के साथ भी एक प्रॉब्लम था, but he stepped up against South Africa. He got himself up in that situation कि उन्होंने अपने आप को किया. But क्या हमारे पास और हम इतने ऑप्शंस हैं कि देखें, या तो आप सही कह रहे हैं, आप फखर को 6 पे ट्राई करें, it's a risk. He can come in with you needing 12, 13 and over and possibly get it for you. Or he can come in and give impetus again. I don't think, Imad, you're wrong with pointing out that he has the experience in the lower order. He's played some innings under pressure. Hafiz, but will people say कि आप youth वाली policy से digress कर रहे हो? Imad, Shoaib Malik, who I think is not going to be very popular after his last statement with at least with the team management, and Hafiz. So are you going away from the youth policy? Yeah, do you need the experience and the ability? Because एक important चीज है याद रखने की with Hafiz, Shoaib and Imad, that they are in demand in T20 leagues around the world. तो क्लियरली उनकी अब बैटिंग में, बॉलिंग में, क्रिकेट में कुछ है कि उनको बार बार फ्रेंचाइजीज चेस करनी है. सो शुड वी लुक एट दैट पिक्चर, या शुड वी लुक एट कि नहीं भाई, हमने तो हैदर को और आसिफ को और किसी और को ट्राई करना है बिकॉज इन भाइयों का टाइम गुजर गया. आई थिंक सबसे पहले तो आपने जो बात की कि इफ्तिखार, आई थिंक इफ्तिखार ने परफॉर्मेंसेस दी हैं, स्ट्राइक रेट भी उसका अच्छा है, बट वी शुड रिमेंबर द फैक्ट कि वो ड्रॉप किस वजह से हुआ था. ही वाज सिवियरली आउट ऑफ टच, ठीक है, विच इज़ व्हाई वी वेंट टू अदर प्लेयर्स. सेकेंडली, आपने आजम खान की बात की. आजम खान की मैंने जिस तरह एक दफ़ा पहले भी आने को कहा था कि आजम खान ठीक है, वही मैं ये चाह रहा हूँ आजम खान के साथ वो गलती ना हो जो हम हर प्लेयर के साथ करते हैं कि हम उसे एक बहुत अच्छे टूर्नामेंट की वजह से या 2 अच्छे टूर्नामेंट्स की वजह से हम उसे ले आएँ. दूसरी जो मेरे ख्याल में एक रिस्क है आजम खान के साथ, वो वही वाला पॉइंट है जो आपने शर्जील के लिए रेस किया है कि ऑल्दो ही इज़ वर्किंग ऑन हिज फिटनेस रियली वेल, बट वही बात है कि अगर वो आउट हो जाता है देन यू हैव अ लायबिलिटी ऑन द फील्ड. दैट बीइंग सेड, आई थिंक जो हमने ट्राई करना था, जो जिस तरह हमने खुशदिल को ट्राई किया, हमने हैदर को ट्राई किया, हमने आसिफ को ट्राई किया, तो अब ट्राई करने वाला जो टाइम है वो आई थिंक चला गया, बिकॉज अब आई थिंक अक्टूबर में वर्ल्ड कप आ रहा है. तो ऑल्दो शोएब मलिक अब काफ़ी अनपॉपुलर हो जाएंगे, और मतलब आई पर्सनली डिडंट लाइक व्हाट ही सेड अबाउट द टीम मैनेजमेंट एंड एटसेट्रा, बट आई थिंक मतलब दैट्स माई इंस्टिंक्ट के Shoaib Malik will be going in at number 5, or
I think Shoaib Malik is someone who can do a way better job than Sarfaraz. शोएब मलिक को आपने नहीं लेके जाना तो फिर आप ट्राई कर लें, हारिस सोहेल को ट्राई कर लें, उसने वर्ल्ड कप में की थी परफॉर्मेंस अच्छी है। हारिस की, you make a good point. अब इस पे आ जाओ, you're very right, Aram, के going forward now, the time for trying has to stop. You need to have a settled lineup. I think Indian conditions में you play Shaheen and you play Hassan or Haris. You don't play all three. And I think you play Fahim to be your third seamer. And you definitely play two spinners. अब Usman Qadir की performance अच्छी है. I think other than against India, who play leg spin very well, in my opinion. Usman Qadir comes into the situation as being a bowler. Zahid Mahmood की performance अच्छी है. Nawaz की performance काफी अच्छी है. Nawaz batting भी कर लेते हैं. So, if I'm putting you on the spot, अगर आपसे मैं ideal आपकी 11 पूछूं, dependent on the conditions, of course, for the kind of conditions we'll find in the World Cup, how would you line up? आई थिंक बॉलिंग लाइनअप में अगर हम देखें तो ऑब्वियसली शाहीन एंड हसन है, ठीक है, फहीम आपका जिस तरह आपने कहा, उस जाहिद महमूद इज आउट ऑफ पिक्चर फॉर नाउ बिकॉज उस्मान ने अच्छी परफॉर्मेंस दे दी है, और स्पेशली कंसिडरिंग कि आपका शादाब वाइस कैप्टन है जिसने वापस आना ही आना है फॉर सम रीजन 22 मैन स्क्वाड में, ऑल्दो ही इज आउट ऑफ फॉर्म। Do you take two leg spinners since it's a 22 man squad? No, not in the starting 11. उस पर डिपेंड करता है। देखें, आपने नंबर 7 पे अगर तो आप इमाद को ले जाते हैं तो आपकी शादाब की जो रिक्वायरमेंट है, और स्पेशली कंसिडरिंग के वो आउट ऑफ फॉर्म है, इमाद या नवाज में से अगर आपका कोई नंबर 7 पे सेटल हो रहा है और वो फॉर्म में आ जाता है, देन यू ऑब्वियसली प्ले उस्मान खादिर एंड यू रेस्ट शादाब। उसके बाद आपका, क्योंकि हफीज को ऑब्वियसली हम रिलेक्टेंटली ट्राई कर रहे हैं, बट ही इज प्रेजेंट एज द 6th बॉलिंग ऑप्शन, तो हफीज कैन बी 6th बॉलिंग ऑप्शन। फिर उसके बाद नंबर 5 पे आइदर, मतलब जो मेरी दो ऑप्शंस हैं, वेदर यू गो विद शोएब मलिक और वेदर यू गो विद हारिस सोहेल, तो उसमें आपको एक पार्ट टाइम बॉलिंग ऑप्शन और मिल जाती है। स्पिनिंग विकेट्स पे हारिस कैन बॉल, शोएब मलिक कैन बॉल, और बाकी योर टीम कैन जेल अप वेरी वेल। अगर आपका 4, मतलब अज्यूमिंग के नंबर 6 पे आपका फखर फायर कर जाता है, तो यू कैन ओपन विद रिजवान बाबर एंड शर्जील विद कैन बी योर टॉप 3। नंबर 4 पे आपका हफीज आ जाता है, नंबर 5 पे आपका शोएब मलिक या हारिस सोहेल में से एक आ जाता है, नंबर 6 पे फखर आ जाता है। इन केस फखर डजंट वर्क, आई वुड easily put इमाद वसीम at number 6। नंबर 7 पे आपका शादाब या नवाज में से एक आ जाते हैं। उसके बाद आपके नंबर 8 पे फहीम, उसके नंबर 9 पे आपका हसन, शाहीन एंड देन उस्मान खादिर। Now, one important thing, Haris Rauf is still a trump card. Haris Rauf is a player a lot of teams will not be familiar with. It's very possible कि उनकी जो skill set है, which is bowling at pace, bowling, we saw him experiment with slower balls also and do well in this series. But Haris में एक tendency ये भी है कि जब उनको attack करना शुरू कर देती हैं टीमें, तो sometimes वो अपनी economy rate को control नहीं कर पाते। तो Haris as part of the squad is fine. But can Haris on the, especially considering कि अगर आपको बैटिंग फ्रेंडली विकेट्स मिल जाती हैं इंडिया में, which is very common, डेड विकेट्स मिल जाती हैं, what does he need to do to be that kind of trump card, to be, you know, to take the pitch out of the equation? Because Haris के PSL performances की वजह से आपने उनको select किया and you've selected him for the raw pace. But the raw pace is not much use if it's going in direction, especially आजकल के अगर आप T20 बैट्समैन देखो तो वो वाइड यॉर्कर्स को भी, आई मीन इवन बाबर आजम इज लेट कटिंग यॉर्कर्स. तो व्हाट डू द बॉलर्स नीड टू डू इन योर ओपिनियन टू मेक श्योर, बिकॉज वी आर आल्सो सीइंग कि इकोनॉमी रेट इज बिकमिंग एज गुड एज विकेट्स. अगर आप डिफिकल्ट विकेट्स पे 140 150 के अंदर टीमों को रख रहे हो, इवन इफ दे लूज 2 विकेट्स, इट्स गुड इनफ टू गिव यू द चांस टू विन द मैच. आई थिंक हारिस की ऑलरेडी एक काफ़ी अच्छी क्वालिटी ये है दैट ही कैन बॉल अ लॉट ऑफ वेरिएशंस, ठीक है, और आई थिंक जिस तरह वो खेलता जा रहा है ही इज इम्प्रूविंग विद टाइम, और विद मतलब एक्सपीरियंस आता है तो बंदा इम्प्रूव करता है. उसका थोड़ा सा बस उस्मान शनवारी वाला इशू है कि जब उसे पढ़ने लगती है तो मतलब ही कैन टेंड टू लूज द प्लॉट, और फिर उसको लाइक ही गेट्स स्मैक्ड ऑल ओवर द पार्क. But I think with the right guidance, I think Haris can be a, मतलब Haris and Hassan में से एक खेलेगा. Obviously, we want Shaheen to ball with the new ball. So Hassan, I think Hassan will be the first choice. I think he can bowl really well. Or overall, as a whole bowling attack, हमें
कंसिडरिंग कि हम इंडिया की पिचेस पे जा रहे हैं, आई थिंक वेरिएशंस जो स्लोअर बॉल्स हैं, जो वैरायटी है हमारी, वो काफ़ी पिवटल होगी कि हम किस तरह मैच जीतते हैं, बिकॉज अगेन टेकिंग द पेस ऑफ द बॉल मतलब कैन विन यू मैचेस इफ डन राइट. Okay, well, Aram, thank you so much for coming on today, talking about this today. I think there's a lot of issues Thank you. that we've discussed, but I also feel that you're right in saying कि अगर हम उन issues को address कर लें, जो हम अपनी strengths में देख लें, आपने बड़ा, I think you made a good case for the reason to have the experience of Hafiz, Shoaib Malik and Imad, and look at it as a positive step. Because I think Pakistan team के लिए winning the World Cup should be more important than worrying about blooding youngsters or giving them an opportunity, because वो आप वर्ल्ड कप के बाद भी कर सकते हो, and back to back T20 वर्ल्ड कप्स होंगे. So I think अच्छा परफॉर्म भी नहीं कर रहे, अगर कर रहे होते तो फिर हम कहते भी कि यार एक्सपीरियंस exactly. And I think back to back वर्ल्ड कप्स में you want to tell, you know, जिस तरह हम 2009 में जब वर्ल्ड कप जीते थे तो we weren't even champions for more than a year. तो इस तरह बैक टू बैक वर्ल्ड कप्स होंगे. So there's a lot of things to look forward to. शुक्र है पाकिस्तान सीरीज जीत गया. Test matches में inshallah Aram and I will be back to cover the test matches. We hope cover two very important wins. Seeing Sri Lanka and Bangladesh putting up 500 runs today. Let's hope that our batsmen can make the runs. Let's hope the likes of Azhar Ali and everybody as part of that team can perform and we can do well. So Aram, thank you for taking the time out. I hope you guys enjoyed this. We'll be back to talk about the test series inshallah soon. Thank you. Thank you. शॉट और कैच आउट हो गया.